Heading 3, resistance. It is the opposition offered to the offer करते ना, offered to the flow of current या flow of electric charges in the conductor. Flow of electric charges in the conductor. Full stop. बड़ा सा और दूसरी डेफिनेशन. It is defined as the ratio of potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it, लिख लो R is equals to V upon I. SI unit ओम. उसके नीचे 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. Resistance is said to be 1 ohm. Resistance is said to be 1 ohm if current of 1 ampere flows through the conductor when potential difference of 1 volt is applied across it. Full stop. डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो आप, राइट? कोई इश्यू तो नहीं है, निकाल लेना, लिख लेना. होता है ml2t-3a-2. ml2a t-3a-2. Side heading, cause of resistance. When free electrons flow from one end, when free electrons flow from
वन एंड ऑफ द कंडक्टर, तुम जो नोट्स कहां में बना रहे क्यों? वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर, comma, they collide with positive ions. They collide with positive ions. Full stop. This collision offers opposition to the flow of electron. This collision offers opposition to the flow of electrons. Full stop. Line change करो. It means resistance depends on nature of the material. It means resistance depends on the nature of the material, because the arrangement of ions, underline कर लेना उसको, because the arrangement of ions is different for different materials. Note, number one, resistance neither depends on V nor on I. Number one, resistance neither depends on V nor on I. Number two, it depends on the nature of the material, comma, dimensions of the conductor, nature of the material, dimensions of the conductor, and also on temperature. Electrical resistivity. It is found that डाल जल्दी वो डालिए। तो बच्चों को एडिंग बता नहीं आते बच्चों को एडिंग पता नहीं आते लिखवा रहे तुम, लिखो तो। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, it is found that resistance is number one directly proportional to the length of the conductor. Directly proportional to the
length of the conductor. Equation number 1. Number 2. लिखिए इक्वेशन 1. ओके, लिखो, वो लिखो इक्वेशन 1 लिखो पहले. R is proportional to L. अब लिखो नंबर 2. Inversely proportional to the area of cross section. To the area of cross section. ब्रैकेट में लिख लो. Smaller the thickness, greater the resistance. ब्रैकेट में smaller the thickness, greater the resistance. बिकॉज आपको बहुत जगह क्वेश्चन थिकनेस के फॉर्म में आता है, मेनली कॉम्पिटिटिव में. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अ वेग वर्ड. मेन थिंग इज थिकनेस, क्योंकि वायर पूरा अंदर से भरा रहता है. आपने देखा है, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर रहे हो मतलब वायर को पतला कर रहे हो. समझ पा रहे हो? आप उसकी थिकनेस को क्या कर रहे हो? कम. लिख लो, R is inversely proportional to A. Equation number 2. Combining 1 and 2, combining 1 and 2 are proportional to L upon A. R is equals to rho L upon A. भूल गए. चलो चलो, टेक्स्ट कर देना. टेक्स्ट. क्या था? लिख लिया, रो एल अपॉन ए. वेयर रो is a proportionality constant known as, where rho is a proportionality constant known as resistivity, electrical resistivity. Electrical resistivity. उसके नीचे if L is equals to 1, A is equals to 1, R is equals to rho. हाँ, शान डिफाइन करो यहां से. व्हाट इज रो? हाँ, तो क्या है? हाँ मिति, डिफाइन रो फ्रॉम एयर. आपने लिखा where rho is a proportionality constant known as resistivity, electrical resistivity. उसके बाद इस फॉर्मूले में I take L is equals to 1, A is equals to 1, R is equals to rho. Define rho. वेरी गुड. ठीक है, और कोई और अच्छे से डिफाइन करना चाहे? गुड. हाँ, Resistivity can be defined as the resistance to a wire of unit length. वेरी गुड. गुड. लिखो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी. इसके बाद यहां तक लिख लिया. इसके बाद इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी is the resistance of the electrical resistivity is the resistance of the electrical बोले नहीं,
electrical resistivity is the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. Unit length and unit area of cross section. Now, बहुत अच्छा क्वेश्चन. इस फॉर्मूले को देख के कैन यू पीपल टेल ऑन व्हाट फैक्टर्स द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी डिपेंड्स? जैसे रेसिस्टेंस है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे. फ्रॉम हियर on what factors the electrical resistivity depends? Area of cross section. Very good. Or length. Excellent. Resistance. Nature of material. भैया वो तो कौन? कांस्टेंट है ना, तो वो इन तीन को नहीं करेगा. When V is directly proportional to I, इस प्रोपोर्शनलिटी से जो हमने कांस्टेंट निकाला था वो था क्या? R. R V और I पे डिपेंड कर रहा था क्या? नहीं. When R is proportional to L upon A, इस प्रोपोर्शनलिटी से जो कांस्टेंट निकाला है वो क्या निकाला है? रो. रो इन सब पे डिपेंड करेगा क्या? रो ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. कॉपर का वायर चाहे तुम 10 मीटर का लो चाहे तुम 100 मीटर का, उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या रहती है? कांस्टेंट. रेसिस्टिविटी कभी भी पढ़ा होगा क्लास 10th में वो टेबल, कंडक्टर्स के लिए लिखी थी, इंसुलेटर्स के लिए लिखी थी. तो जब किसी की वैल्यू लिख दी तो वो चेंज कैसे होगी? तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज अ प्योर कांस्टेंट. इट नीदर डिपेंड्स ऑन लेंथ नॉर ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. It only depends on nature of material. कॉपर के लिए कुछ और, आयरन के लिए कुछ और, but it also depends on T, temperature. यह भी इंट्रोड्यूस नहीं किया इसलिए. अदरवाइज टेम्परेचर के साथ आपका रेसिस्टेंस भी वेरी करता है और आपकी रेसिस्टिविटी भी वेरी करती है. रो ऑल्सो वेरीज विथ टेम्परेचर. कॉपर की रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट है. अगर आप 273 से वेरी करोगे या 0 डिग्री के ऊपर नीचे जाओगे, इट विल वेरी. राइट? तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये बात की बात है. फिलहाल के लिए इट इज जस्ट अ प्योर कांस्टेंट. राइट? लिखिए. नोट नंबर 1, रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या रो सीधा लिख लो. रो डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. अपॉन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. नंबर 2, नहीं, इसी में इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल. इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल. अब नंबर 2, it also depends on temperature of the conductor. Temperature of the conductor से उसी के बाद ब्रैकेट में लिख लो कि if T increases, rho also increases. ऐसे T इंक्रीज हो रहा है तो रो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. नंबर 3,
SI यूनिट क्या होगी इसकी? ओम मीटर। SI यूनिट ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी कुल मिला के दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे, एक टेम्परेचर। नाउ दिस डेरिवेशन इज न्यू, आई मीन ये आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपके पास था, बट दिस इज वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट। ये आता है डेरिवेशन फॉर रेसिस्टेंस ब्रैकेट factors affecting resistivity। डालिए। डाल लिया। डेरिवेशन इज क्वाइट सिंपल, 4 स्टेप का है, याद हो जाएगा। राइट, सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज किए हैं, एक किया है VD इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम, और दूसरा किया है I इज इक्वल्स टू नाप दे। इन 2 से प्रूफ हो जाए। राइट, तरीका, आप किसके लिए डेरिवेशन करने जा रहे हो? आप किसके लिए ड्राइव करने जा रहे हो? R। R होता है V अपॉन I। आपको कैसे भी करके कहां पहुंचना है? V अपॉन I। राइट, देखो कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD। कितना पोटेंशियल दे रहे हो जिसके कारण करंट कितना? I। आपको पता है VD होता है E टाउ अपॉन, राइट, वेरी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, आप E को किसके फॉर्म में लिख सकते हो? यहां से एक्सीलेंट, कौन बोला? E को लिख सकते हैं V अपॉन L के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू dV अपॉन dr। तो V is the potential difference across the length L. You can write E is equals to V upon L. तो VD हो गया कितना? E V टाउ अपॉन M L। तो हम लिख सकते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, नाप दें। राइट, जैसे ही VD की वैल्यू यहां पुट करोगे आपका V अपॉन I बन जाएगा। जैसे ही करंट में आपने VD की वैल्यू रखी, कितनी रख दी? E V अपॉन ML टाउ। तो यहां V है, यहां I है, V अपॉन I बना सकते हो? बिल्कुल। एक तरफ V अपॉन I ले आओ, दूसरे फैक्टर्स दूसरी तरफ ले आओ, आपका डेरिवेशन सॉल्व। देखो I इज इक्वल्स टू M A, कितना है VD? E V अपॉन ML टाउ, ये टाउ, और साथ में क्या है? कुछ नहीं, हाँ ये वाला, ये वाला। ठीक, V है यहां पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन में I ले आओ, बाकी सारे फैक्टर्स इस साइड ले आओ। देखो तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू, M नीचे है तो ऊपर आ गया, अपॉन E स्क्वायर N E स्क्वायर और आ गया टाउ, और L अपॉन A। चेक करो, यही आएगा। V था, I को नीचे लाए, M और L ऊपर गए, तो देखो M और L ऊपर गए, बाकी सारे टर्म्स नीचे आ गए, E स्क्वायर N और साथ में टाउ और A। सो M अपॉन N E स्क्वायर टाउ L अपॉन A। V अपॉन I क्या है? R इज इक्वल्स टू
m अपॉन n e स्क्वायर टाउ l अपॉन a। कौन बताएगा ये क्या है? रो। क्या ये? रो। बिकॉज r इज इक्वल टू रो एल अपॉन a। मतलब यहां से आपको रो मिला क्या? m अपॉन n e स्क्वायर टाउ प्लस c। m is the mass of electron constant, e is the charge of electron constant। मतलब कि आपका जो रो है it is inversely proportional to n and it is inversely proportional to tau। Factors affecting resistivity, rho is inversely proportional to n, rho is inversely proportional to tau। लेकिन हमें क्या पता था कि रो ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ही लिखा है दूसरी भाषा में। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे? ये आपका नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ही लिखा है दूसरी भाषा में। कैन यू रिलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विद द नेचर ऑफ मटेरियल? कोई रिलेट कर सकता है? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, कैसे? छोटे आयन होंगे वो पर यूनिट कम होंगे। और एक मिनट दीपेश, पूछ एक मिनट दीपेश पूछ। हाँ, नेचर ऑफ द मटेरियल, वेरी गुड। हाँ, फिर हाँ, टाउ से टेम्परेचर कैसे रिलेट करोगे? चलो, पहला तो सिंपल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेंगे। यूनिट वॉल्यूम के कॉपर में कुछ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आयरन के यूनिट वॉल्यूम में कुछ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वुड के में कुछ और, सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग। तो ठीक है, आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो नेचर ऑफ मटेरियल बता रहा है। टाउ टेम्परेचर कैसे बताएगा? हाँ, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। वेरी गुड। तो आपको को बता दो, कंप्लीट पूछ रहे भाई। हाँ, टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। हाँ, गुड, देन वेरी गुड। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ है और रो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टाउ के। तो दो इनवर्स क्या बन जाएंगे? डायरेक्ट। सो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। हाँ, कोई और, किसी को नहीं समझ में आया? कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? वो सिर्फ हम दोनों को आया अभी भी, इतनी हिंट मिलने के बाद भी। एनीवन कोड एक्सप्लेन? हाँ, उसकी क्या बढ़ जाएगी? रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी। नहीं, तुमने कहा कि देखो टेम्परेचर बढ़ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई, तो तुमने क्या कर दिया? रिलैक्सेशन टाइम को कम कर दिया। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो जल्दी कोलाइड करेंगे ना, अपोजिशन ज्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। कम कैसे हो जाएगी? कहां होती है रेसिस्टिविटी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यहां लिखा था वो काम है ब्रैकेट कि टी इंक्रीजेस रो इंक्रीजेस। हाँ, और कोई? हाँ दीपेश, अब करो। टाउ से वह ताऊ से ऐसा हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ताऊ कम हो जाएगा। हाँ, ताऊ कम हो जाएगा तो उससे क्या? तो उससे इनवर्स रिलेशन आ गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ताऊ कम हो जाएगा। देखो, ताऊ पे कैसे डिपेंड करेगा? आपका जगह ले लो, हेडिंग डाल ली ना, इधर देखो। पहले ये देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से नेचर ऑफ मटेरियल समझ में आ गया? गुड। यहां से अपना निकला कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। एक रिलेशन ये अपने लिए ऑलरेडी गिवन कि रो आपका क्या होता है? बढ़ता है जब आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? कम। ठीक, अब रिलैक्सेशन टाइम को टेम्परेचर से रिलेट करो। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगे। आपने बताया था काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम।
मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, रो के इनवर्स है टाउ और टाउ के इनवर्स है टी, तो रो के डायरेक्ट क्या पहुंच जाएगा, टी। अगर मैथमेटिकली देखो, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर। तो दो इनवर्स से क्या बनता है, एक डायरेक्ट, तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कॉन्सेप्चुअली समझो, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ कि नहीं। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ मतलब कोलिजन ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहे, तो वो रेसिस्टिविटी को बढ़ा रहे हैं ना, राइट। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आती है, रेसिस्टिविटी। तो रो से आप टाउ और टाउ से आप टी रिलेट कर सकते। तो जे आपका जो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ लिखा है, इसका मतलब क्या है, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिखा है, बिकॉज टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। समझे, दो इनवर्स रिलेशन से एक डायरेक्ट रिलेशन बताएंगे। गॉट इट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम होगा आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तभी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, कम। और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ मतलब कोलिजन्स बहुत ज्यादा हो रहे, फास्टर हो रहे, तो वो रेसिस्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। मतलब डायरेक्टली देखा जाए तो टाउ और रो और टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। गॉट इट। कंसीडर डायग्राम कंसीडरेशन के बाद कंसीडर अ कंडक्टर। अब बना लो, पहले बना लो डायग्राम, बना। हाँ अब बना लो, अब तुम बनाओ, करे बनो। तुमने कंसीडर को डार्क कर दो, डायग्राम बना भी कह रहे। बना तो रहो, पेन से बना लो। तो मन लग गया आपके सामने उसे जरा वहां भी आप देख रहे हैं, मन लग गया। कंसीडर वो तुम्हारा बन गया, क्या दिख नहीं रहा वहां से, बोर्ड विजिबल, थोड़ा सा देखो। कंसीडर अ कंडक्टर of length small l, and area of cross section capital A, full stop. If the drift velocity of an electron is Vd, then Vd is equals to E upon m tau. दोनों स्टेप लिख लो, Vd is equals to EV upon ml tau. दूसरे स्टेप को इक्वेशन नंबर 1 दो, और जहां दूसरा स्टेप लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख लेना E is equals to V upon L। साइड में ब्रैकेट में लिख लेना सिंस करके, E is equals to V upon L। Now current flowing through
it. Current flowing through it. एक, दो, तीन और चार. ठीक है. दूसरा, तीसरा और चौथा. ये सर्कल वगैरह मत बनाना, बस ब्रैकेट बना. क्या हुआ? नहीं दिख रहा? सिर्फ ब्रैकेट तक लिखना. हाँ ये वाला. Where m upon n e square tau, where m upon n e square tau is a constant known as resistivity. Resistivity. लिख लो. रो इज इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ. लाइन चेंज करके रो इज इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ. हाँ नहीं, उसके फिर नीचे इट इंप्लाइज दैट रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, कॉमा रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. साइड हेडिंग इसी डेरिवेशन का पार्ट है. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी. नंबर वन, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. Since the number of electrons per unit volume, ब्रैकेट में स्मॉल n, per unit volume, small n, depends on nature of the material, depends on nature of the material, depends on nature of the material, comma, thus resistivity depends on nature of material. Thus, resistivity depends on the nature of material. Number two, rho is inversely proportional to tau. Since the relaxation time decreases, since
The relaxation time decreases with increase in temperature. With increase in temperature, I dot E, that means tau is inversely proportional to T. Line change, it shows that resistivity is directly proportional to temperature. It shows that resistivity is directly proportional to temperature. Rho proportional T, bracket. Note, number one, metals have very low resistivity. Very low resistivity of ये इसके अंदर लिखना है। ये बेटा नोट लिख रहे हैं उसी डेरिवेशन के बाद। वो फैक्टर्स अफेक्टिंग पे डेरिवेशन खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नोट लिख रहे हैं। नंबर वन, metals have very low resistivity of the order 10 power minus 8 meter. हाँ, ओम मीटर। Number two, insulators have resistivity. Insulators have resistivity 10 power 22 to 10 power 24 times. ऐसे लिखो, 10 power 22 to 10 power 24 times the resistivity of metals. The resistivity of metals. मतलब कितने ओम मीटर होगी, कौन बताएगा? जो इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी है वो 10 पावर 22 टू 10 पावर 24 टाइम्स ज्यादा है। किसकी रेसिस्टिविटी से? मेटल्स की। तो ओम मीटर की रेंज में कितना आएगा? वेरी गुड, 10 पावर माइनस 14 टू 10 पावर माइनस 16 ओम मीटर। माइनस नहीं, प्लस आई। 10 पावर 14 टू 10 पावर 16 ओम मीटर। वो -8 था, ये 22 या 24 टाइम ज्यादा है, तो -8 में प्लस 22 प्लस 24 करो तो कितना? 14 और 16 आ जाएगा। नंबर 3, सेमीकंडक्टर्स have resistivity in between metals and insulators. Metals and insulators. तो -8 से लेके 14 तक की रेंज किसकी हो जाएगी? इंसुलेटर्स। हाँ, सेमीकंडक्टर्स। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने। ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। इसमें देखो, मतलब हेडिंग डालो,
5 मिनट भी नहीं लेंगे, छोटा सा। ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। Now who will tell what are ohmic circuits? नाम में पता है, नाम में दिख रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस हो वो ओमिक, जिसमें ना हो वो नॉन ओमिक। भैया जो उसको लॉ को फॉलो करें वो ओमिक, जो ना करें जो नाम में लिखा है ओमिक, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करें वो ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें वो नॉन ओमिक। ओमिक सर्किट कौन है? जो ओम्स लॉ क्या करते हैं? फॉलो। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्जाम्पल। ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं मतलब कि उनका जो VI ग्राफ है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल इज मेटल्स एट लो टेम्परेचर। मेटल्स जो है एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर किसको फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ। बट अगर यही सेम मेटल्स आप हाई टेम्परेचर पे लो तो दे विल डेविएट फ्रॉम द ओम्स लॉ। वो क्या कर जाएंगे? ओम्स लॉ से डेविएट। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसमें अब क्या आ जाएगा? डेविएशन। सेम ग्राफ VI, आपका ग्राफ ये होना चाहिए था बट नहीं, इट विल शो सम डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दिस इज द मेटल्स एट हाई टेम्परेचर। मैंने बोला था अंडर द फिजिकल कंडीशन इज केप्ट कांस्टेंट, देन ओनली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एक टाइम के बाद जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर आपको वोल्टेज उतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ करंट। अगर और डेप्थ में जाना है जिसकी जरूरत नहीं है तो समझ लो फील्ड एमिशन होता है। फील्ड एमिशन का मतलब यह है कि अब आपने टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो वहां पे होस्ट एटम्स थे ना, उन एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स खिंच के कहां आ गए? बाहर। तो अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से जो क्या करेंगे? फ्लो। तो आपके उतने पोटेंशियल पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मतलब करंट क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब आपका नाउ पोटेंशियल इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट हायर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर पे आपने एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वहां पे फील्ड एमिशन होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप देखोगे सेमीकंडक्टर। तो आपके होस्ट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे ना, करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। पोटेंशियल तो अभी भी आप 100 वोल्ट ही दे रहे हो, राइट? बट आपने टेम्परेचर बढ़ाने के चक्कर में आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं करे। तो मेटल्स एट हाई टेम्परेचर इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक सर्किट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओमिक सर्किट, राइट? और भी नॉन ओमिक सर्किट्स हैं, जैसे ये देखिए, दिस इज V, दिस इज I। ये भी सेमीकंडक्टर है, PN जंक्शन डायोड। देखो इसका ग्राफ कैसा रहता है। यहां पे भी आप देख रहे होंगे कि VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या? नहीं। मतलब PN जंक्शन डायोड डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। PN जंक्शन डायोड इज अ नॉन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक। दूसरी चीज आप देख पा रहे हो कि जो करंट का डायरेक्शन है वो पोटेंशियल डिफरेंस के साइन पे डिपेंड कर रहा है। साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो आपका करंट भी फर्स्ट। पोटेंशियल डिफरेंस फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो आपका करंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? थर्ड, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस के साइन पे डिपेंड कर रहा है करंट। दूसरी चीज स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इट इज नॉट फॉलोइंग द ओम्स लॉ। इट मींस PN जंक्शन डायोड इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक सर्किट। लास्ट एग्जांपल,
दिस इज अ ग्राफ फॉर थायरिस्टर. थायरिस्टर पहले वर्ड सुना. इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर्स में एक डिवाइस यूज होती है थायरिस्टर, जो भी सेमीकंडक्टर से बने. किससे बनती है? सेमीकंडक्टर्स. दिस थायरिस्टर, अगर आप इस ग्राफ को ए से लेके बी देखो तो आपका पोटेंशियल ए से लेके बी में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज. ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. या तो उसका उल्टा ही देखने मिल रहा है. इट मीन्स थायरिस्टर इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग द ओम्स लॉ. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक सर्किट. यहां पे सिर्फ आपको नॉन ओमिक सर्किट के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं. ये आपने कहीं ना देखे ना आपने इनको कहीं पढ़ा है. एज एन एग्जाम्पल यू शुड रिमेंबर व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग द ओम्स लॉ. तो मैक्स टू मैक्स इससे सिर्फ यही पूछता है कि व्हाट आर नॉन ओमिक सर्किट्स, गिव एग्जांपल्स. अगर सिंपल आया राइट, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता. तो आपने नॉन ओमिक सर्किट के कितने एग्जांपल्स देख लिए? 3. राइट. नॉन ओमिक सर्किट्स आर दोस विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ. मेटल्स को अगर हायर टेम्परेचर पे ले जाओगे दे विल नॉट फॉलो ओम्स लॉ. It means metals at high temperature are the example of non-omic. Number 2, PN junction diode is also an example of non-omic. Why? Because V is not directly proportional to I. They are not following the VI graph, straight line. B, current depends on the sign of potential difference. ठीक? Number 3, thyristor. Thyristor में तो और ही उल्टा. From A to B, when we are increasing the potential, the current decreases. It means it is also not following the ohms. It is an example of non-ohmic. Ohmic and non-ohmic. जब आप क्लास में आए थे तो यही 4 ग्राफ बने थे. जाइए.